Good morning, students. Today our lesson is political parties. So, here the term political parties. We will discuss the term political parties. So, यहाँ पे सबसे पहले होगा political party means a group of people. A group of people come together to contest election and hold power in the government. So, the first one is group of people. Group of people. Then come together. Then contest election. Why? To hold power. Where? In the government. So, it is your definition. Group of people come together to contest election to hold power in the government. Okay. So, ये आपको याद होना चाहिए. So, what is the main aim of political party? The main aim of political party, or you can say the main role of political party is to fix the agendas and the policies. The main role of the political party is to fix agendas and policies. नीतियां बनाती है, नियम बनाती है, किसके लिए बनाती है? देश के लिए बनाती है, देश के लोगों के लिए बनाती है. So it is the main role of political parties. Now come to the next topic. What are the different components of a political party? Political party के कितने घटक होते हैं? So if we discuss the component of the political parties, component of political parties of a political party. So, यहाँ पे we can divide it into three categories. How many categories? Three categories. The first one is leader. The second one is active member. Here you can say leaders, active members, and the last one is followers. Last one is followers. So, यहाँ पे लीडर भी हो सकता है, लीडर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी में कुछ मेन लीडर्स होते हैं. सो द कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. सो लीडर्स, कौन है लीडर्स? लीडर, हिज डिसीजन इज द मेन डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी. ही इज द हेड ऑफ दैट पार्टी. ओके. एंड एक्टिव मेंबर, the members who work for the party, and the third one is followers just like us, the people who like different parties. So the people who like that party is the follower of that particular party. If a person is a follower of Congress, or if a person is a follower of Bharatiya Janata Party, it means the concerned person is the follower of Bharatiya Janata Party or the follower of a Congress party. So these are the components of a political parties. Now come to the next topic, that is the difference between ruling party and the opposition party. दो तरह की पार्टी होती है, वो तो what is ruling party and what is opposition party. So here we will discuss what is ruling party and what is opposition party. Ruling party, here ruling party means the party which gain majority of votes in the election, जिनको election में बहुमत मिलता है,
and they form government. They form government. That party is known as ruling party. जब इलेक्शन होती है उसमें उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है, वो उनका जो है मेंबर्स जो है फॉर एमपी ज़्यादा होते हैं, एंड दैट पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट और रन गवर्नमेंट. ओके, दैट इज रूलिंग पार्टी. सो अभी हम इन इंडिया विच पार्टी इज रूलिंग पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इज रूलिंग पार्टी. सत्ता में कौन है, कौन देश चला रही है? भारतीय जनता पार्टी. सो नाउ नेक्स्ट इज योर ऑपोजिशन पार्टी. जस्ट कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट. रूलिंग पार्टी मतलब जो सत्ता में है, हु रन द गवर्नमेंट, एंड द ऑपोजिशन पार्टी हु सिट opposition of that ruling party, that is opposition party, and that party lose in the election. जो चुनाव होती है, जो इलेक्शन होती है, उसमें उस पार्टी की हार हो जाती है, उनको मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलता है. बिकॉज ऑफ दैट they sit in the opposition of a ruling party where in the parliament. So in India यदि हम कहें विच पार्टी इज द ऑपोजिशन पार्टी, तो यहाँ पे सबसे बिग ऑपोजिशन पार्टी किसको माना जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस. किसको माना जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं कांग्रेस पार्टी. सो हियर हम लोगों ने समझ लिया कि व्हाट इज रूलिंग पार्टी एंड व्हाट इज opposition party. Ruling party is BJP here now at present. Yes, okay. And opposition, the यहाँ पे बिग ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टीज बहुत सारे हो जाते हैं जिनके जो है एमपीज इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आते हैं. जिस पार्टीज के जो एमपी सेलेक्ट होके या इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आते हैं, एंड दे डोंट विन in behalf of BJP. So they sit in the opposition of BJP in the parliament. So यहाँ पे यदि सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे बिग ऑपोजिशन पार्टी ऑफ रूलिंग पार्टी इन पार्लियामेंट, दैट इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इन सिंपल वे यू कैन से कांग्रेस party. Now come to the next topic, that is very important topic, and the topic is party system. Okay. So what is our topic? The topic is party system. So यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है. तो क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव? हमारे पास कितनी तरह की पार्टियां होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टीज, पार्टी सिस्टम, और यू कैन से पार्टी सिस्टम should we have? It is a big question mark. It is a big question mark. इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं. Which party system is an ideal party system for a democratic country? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सी पार्टी सिस्टम एक आइडियल पार्टी सिस्टम मानी जाती है? जब हम इस पे डिस्कस करेंगे तो इसका हम लोगों को वी विल फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर और करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो हियर हम जब पार्टी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, we can divide it into 3 different types of party system. The first one is single party system. Okay. The second one is two party system. And the last one is multi-party system. याद रखिएगा, these are the 3 types of party system: single party system, two party system and multi-party system. यहाँ पे यदि आप सिंगल पार्टी सिस्टम को यू कैन से इट इन अनदर वे, दैट इज यूनिटरी सिस्टम.
what we can say? Unitary system, single party. अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट single party system. What is single party system? Here the term itself derive the meaning of single party system. कैसे? In this party system there is only one party, isn't it? Yes or no? Yes. There is only one party and there is no other party in the competition. Where? In election. Election के समय there is no another party. There is no another party in election because single party. But लेकिन here the party should be the same. The party should be the same, but the candidates of that party keep changing. Keep changing. पार्टी तो एक ही होगी लेकिन उसके जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट क्या होते होंगे? चेंज हो जाते होंगे. ये 5 साल के लिए मुझे चुना गया, नेक्स्ट 5 ईयर के बाद यदि इलेक्शन होगा तो मेरा काम यदि किसी को नहीं पसंद आया, द पार्टी विल नॉमिनेट अदर कैंडिडेट. ओके, मेरे बदले में पार्टी क्या करेगी? किसी और कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी. सो द पार्टी विल बी द सेम but the candidate keep changing on. So it is the one system, it is the feature of one party system. Then second one, is it good system? यदि हम पूछे या हम आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछे क्या एक ये आइडियल पार्टी सिस्टम है, तो नो. इसका जवाब क्या होगा? नो, इट इज नॉट एन आइडियल पार्टी सिस्टम. ये आइडियल पार्टी सिस्टम नहीं है. देन अब नेक्स्ट आ जाता है किस किस कंट्रीज में वन पार्टी सिस्टम है. इन विच कंट्रीज? द बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइना. ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइना. कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है एंड देयर ओनली वन पार्टी सिस्टम. अब क्यों? चाइना में शुरू से ही वन पार्टी सिस्टम चले आ रहा है और इट इज लोग जो है उसके अगेंस्ट में आवाज भी नहीं उठा रहे हैं, आवाज उठा भी रहे हैं तो भी क्या है? वन पार्टी सिस्टम. द पीपल आर हैप्पी. Yes, the people are happy with the party system. Why? Because of the ideology of the people of that country. The people like the ideology of the single party or that party system. उस पार्टी के जो आइडियोलॉजी हैं, जो नीतियां हैं, वो वहां के जो पीपल हैं, वहां के जो सिटीजन हैं, दे लाइक इट. सो इन चाइना वन पार्टी सिस्टम चल रहा है एंड यू कैन से कोरिया ऑल्सो, देन थर्ड क्यूबा ऑल्सो. सो ये कुछ कंट्रीज है जहां पे वन पार्टी सिस्टम चला आ रहा है. एंड वन पार्टी सिस्टम का मतलब यही है कि जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी होगी बट द कैंडिडेट्स कीप चेंजिंग. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज टू पार्टी सिस्टम. व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम? यहां पे ये भी डिफाइन कर रहा है इटसेल्फ. टू पार्टी मतलब दो पार्टियां. देयर विल बी मेन टू पार्टीज इन दिस पार्टी सिस्टम. दो पार्टियां जो हैं वो क्या होंगी? मेन पार्टी होंगी. इन सम सिचुएशन देयर आर सम स्मॉल पार्टीज. देयर मे बी सम स्मॉल पार्टीज, बहुत सारी स्मॉल पार्टीज इन सम सिचुएशंस. छोटी छोटी पार्टियां हो सकती हैं बट द पावर शिफ्ट, पावर जो है शिफ्ट किस में होती है? इधर दोनों के साथ. द पावर शिफ्ट बिटवीन दीज टू बिग पार्टी. या तो इस पार्टी को पावर मिलती है या तो उस पार्टी को पावर मिलती है. ओके, सो टू पार्टी सिस्टम मीन्स here the power shift between the two big parties. Okay,
अब in which country this party system is running or following? The two main countries are USA and the second one is UK. USA means United States of America and the second UK means United Kingdom. Here two party system is very famous and यही चल रहा है system. They adopt a two party system. Okay. Now come to the last, that is multi-party system. Here multi मतलब बहुत सारा, है ना तो one, ना तो two, more than two. It may be 3, it may be 4, it may be 10, it may be 200 and it may be 2000. Okay. So multi-party system means more than two. यहाँ पे इस पार्टी सिस्टम में there are several parties, they compete for the power in election. मतलब यहाँ पे हो जाएगा if several parties compete for powers and more than two parties have chance of coming to the power either of their own strength or in alliances with others. मतलब more than two party or you can say several parties compete in election. For which purpose? To hold powers, to make a government. And यहाँ पे जो है यदि सपोज एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, if one party doesn't get majority, then यहाँ पे that time क्या होता है? The party with alliances, अपने alliances के साथ the party form government. Alliances का मतलब सहयोगी पार्टी जो उनको फेवर करती है. क्या करती है? जो उनको फेवर करती है. अब यहाँ पे ये आ जाता है कौन कौन से कंट्रीज में मल्टीपल पार्टी सिस्टम पॉपुलर है. इन विच कंट्रीज? द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडिया. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलती है. बिकॉज क्यों? सबसे पहला, द फर्स्ट रीजन वाई इंडिया having multi-party system, because of the geographical condition of India. Then second, ethnic composition. Ethnic composition. Geographical condition मतलब इंडिया का यदि हम भौगोलिक दृष्टि देखें, भौगोलिक स्थिति देखें तो बहुत सारी जो है धर्म के लोग, बहुत सारे जाति के लोग इंडिया में रहते हैं. और हर स्टेट में जो है सपोज यू कैन से इन तमिलनाडु में तमिल स्पोकन पीपल है. इन नॉर्थ इंडिया कौन से पीपल है? हिंदी स्पोकन पीपल है. देन यू कम टू वेस्ट बंगाल, कौन से पीपल है? बंगाली स्पोकन पीपल है. तो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो अपने अपने स्टेट में अपने अपने जो एथनिक कॉम्पोजिशन है या लैंग्वेज के बेसिस में दे फॉर्म रीजनल पार्टीज. तो जितनी ज़्यादा रीजनल पार्टीज बनेंगी, जितनी ज़्यादा स्टेट पार्टीज बनेंगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा? मल्टीपल पार्टी होगा. होगा कि नहीं होगा? सो बिकॉज ऑफ द एथनिक कॉम्पोजिशन यू कैन से, और द सेकेंड रीजन इज द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया. इंडिया फॉलो मल्टी पार्टी सिस्टम. ओके, अब यहाँ पे आ जाता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में इज इट आइडियल पार्टी सिस्टम? क्वेश्चन आ जाता है. यदि आपसे कहेगा इज इट एन आइडियल पार्टी सिस्टम? यस, इट इज एन आइडियल पार्टी सिस्टम. क्यों आइडियल पार्टी सिस्टम है? बिकॉज द वोटर्स वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस to choose our best leader, to choose the best government, है ना? So it is an ideal party system. Okay? So यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटा सिंगल पार्टी सिस्टम,
टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे हमने और भी दो टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज अलायंसेस एंड द सेकेंड वन इज कोलिशन। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है गठबंधन की सरकार, अलायंसेस का मतलब है सपोर्ट करना। बड़ी पार्टी को जब छोटी पार्टियां उनके साथ मिल जाती हैं एंड दे सपोर्ट द बिग पार्टी फॉर विच पर्पस, टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, हमको गवर्नमेंट बनाने के लिए सपोज छोटी पार्टी हेल्प करती है, अलायंसेस बनाती है बड़ी पार्टी के साथ, दैट इज अलायंसेस। एंड कोलिशन गवर्नमेंट जब बहुत सारी छोटी छोटी जो है पार्टियां गठबंधन बना लेते, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट, जस्ट लाइक एनडीए एंड कांग्रेस पार्टी का भी जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनता है जब इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, अपने दम पर वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं गेन कर पाती है। इन केस दे फेल टू गेन मेजॉरिटी ऑफ वोट टू फॉर्म गवर्नमेंट, इन दैट केस दे इनवाइट किसको? अलायंसेस टू सपोर्ट दैट बिग पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। Okay, so these are the three terms, three party system, single party system, two party system and multi party system. That's all. Now come to the next topic, that is functions of political party. Political party तो है, it is a feature of democracy. Political पार्टी जो है एक डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, होना ही होना है। इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकल पार्टी इज मस्ट, पॉलिटिकल पार्टी इज मस्ट, इट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इनके कुछ फंक्शंस भी होंगे, इनके कुछ कार्य भी होंगे। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या काम होते हैं? द फर्स्ट वन इज पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाय पुटिंग अप कैंडिडेट। यस, जब हर 5 साल में इलेक्शन होता है तो डिफरेंट पार्टी से कैंडिडेट क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट किया जाता है। बीजेपी से पार्टी मेंबर्स जो है, पार्टी लीडर्स जो है कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, कांग्रेस से नॉमिनेट किया जाता है, आम आदमी पार्टी से नॉमिनेट किया जाता है। तो पहला जो है वर्क उनका होता है पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाय पुटिंग अप कैंडिडेट। अपने अपने प्रत्याशी को, अपने अपने कैंडिडेट को वो खड़ा करते हैं। अब कैसे खड़ा करते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि ये किसकी ड्यूटी है? इफ we take example of USA and India, यदि हम यहाँ पे USA और इंडिया का एग्जाम्पल ले कि कैसे जो है हर पार्टी वाले अपने अपने जो कैंडिडेट को, हाउ दे पुटिंग अप देयर कैंडिडेट टू फॉर द कॉन्टेस्ट इन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन। USA में द पार्टी मेंबर्स and the follower elect their candidate. See, in USA, not the top leaders of that particular party, the followers and the members of that party, they elect the candidate for that party. Okay? But in India, the top leaders of that particular party, जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं पार्टी के, they elect, they nominate, they elect the deserved candidate or they nominate the candidate to contest election. See the difference. यहाँ पे किसको फुल राइट दिया गया है? टॉप लीडर्स को। यहाँ पे किसको राइट दिया गया है? The working members, committee members या party members, isn't it? So this is the difference between USA and India. तो इंडिया में लिबरल है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा रिजिड है, जो पार्टी लीडर है their decision is final decision, but in USA all are having
राइट, सबको अपना अपना अधिकार है. ऑल पीपल, ऑल वर्किंग मेंबर, ऑल पॉलिटिकल मेंबर यूज देयर राइट. बट हियर द टॉप लीडर्स आर हैविंग more right. Next point is party put forward different policies and programs. पार्टी जो है वो अपनी अपनी एजेंडा को बताएगी, पॉलिसीज को बताएगी, प्रोग्राम्स को बताएगी कि यदि हम इफ माई पार्टी विन इन दिस इलेक्शन, यदि मेरी पार्टी इस इलेक्शन में जीत जाती है, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू. तो वो क्या करती है? टू अट्रैक्ट द वोटर्स, टू अट्रैक्ट द वोटर्स. और सबके प्रोग्राम्स और पॉलिसीज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. कोई जो है एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करता है, कोई जो है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. तो सबके अपने अपने जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है वो डिफरेंट होते हैं. एंड इट इज ऑन अस कि हमको किसकी पॉलिसी, विच पॉलिसी आई लाइक मोस्ट, विच पार्टी I like most, the policies of the party. हम उसको क्या करते हैं? I cast my vote for that particular party. जिस पार्टी की पॉलिसीज मुझे ज्यादा पसंद आती है. So party put forward different policies and programs. Now next, party play a decisive role in making law for the country. Very important. हमारा पार्लियामेंट है, जो भी हमारी लीडर्स हैं, जो भी लीडर चुनाव जीत कर जाते हैं, द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्शन, वेयर दे सिट इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में बैठते हैं कि नहीं बैठते? एंड देयर दे डिसाइड डिफरेंट लॉज, देयर दे मेक, दे पास different varieties of schemes, varieties of programs and law for the people of that particular country. Okay? Next is party form and run the government. Yes? इलेक्शन ही इसी वजह से होता है. फॉर दिस पर्पज इलेक्शन हेल्ड होता है कि नहीं होता है? इलेक्शन हेल्ड हुआ. If any particular party gain majority of vote, that party run government. That party run the government. And the last one is parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the governments. Government ने स्कीम बना दिया. Government launched many schemes, many policies, many programs for the people. लेकिन how much it will reach to the people? कितना ये सही तरीके से लोगों के पास तक पहुंचता है? How much the people get benefit from that policies, from that programs? It is the duty of that political पार्टी, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एरिया. जो पॉलिटिकल पार्टीज के हमने कहा था ना अर्लियर, हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. द सेकेंड वन वाज क्या था? एक्टिव मेंबर्स. था कि नहीं था? तो वो एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं वो हर अपने अपने जो एरियाज में होते हैं, दे लुक फॉरवर्ड, वो जो है काम देखते हैं कि ये जो हमारी स्कीम है, द स्कीम ऑफ दैट गवर्नमेंट, द प्रोग्राम्स दैट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, हाउ मच इट विल बी बेनिफिटेड फॉर द पीपल एंड हाउ मच द पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट program. So it is the duty of that political party. So here मुझे नेक्स्ट और एक है, द लास्ट वन इज ऑपोजिशन पार्टी. अब यहां पे एक लास्ट है जो ऑपोजिशन पार्टी. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट? यदि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आवर डिस्कशन विल बी इनकम्प्लीटेड, है ना. तो इट इज द
ड्यूटी ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, जो ऑपोजिशन पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी टू रेज देयर वॉइस, अपनी आवाज उठाएं, किसके लिए? फॉर विच पर्पस? फॉर द रॉन्ग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। यदि रूलिंग गवर्नमेंट कोई गलत प्रैक्टिस कर रही है, कोई गलत प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, कोई गलत पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑपोजिशन पार्टी टू रेज देयर व्यूज अगेंस्ट ऑफ दैट इश्यूज। किसके? अगेंस्ट ऑफ रूलिंग पार्टी, अगेंस्ट ऑफ रूलिंग पार्टी। तो इससे क्या होता है? रूलिंग पार्टी जो है, दैट पार्टी इज बाउंड टू डू गुड फॉर द सिटीजन, बिकॉज रूलिंग पार्टी को पता है यदि हमने कुछ भी गलत काम किया, ऑपोजिशन पार्टी इज रेडी टू शो मी फिंगर। सो इट ऑपोजिशन पार्टी का भी रोल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द पार्लियामेंट, दैट इज टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट. So these all are some important functions of political party. और बच्चों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. थैंक यू.